आज मलेशिया में हम लोगों का दूसरा दिन है। हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं। Penang is majority Chinese. Chinese is controlling the whole Malaysian economy. दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ बाटू केव टेम्पल। बाटू केव टेम्पल के अलावा इसे सुब्रमण्यर स्वामी देवस्थान के नाम से। ये जो लॉर्ड मुरुगन की 140 फीट ऊंची स्टैचू, आप में से कई लोग इन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जानते होंगे। 272 में से 50-60 सीढ़ियाँ भी बाकी हैं। और ये है लॉर्ड मुरुगन का मेन टेम्पल। लॉर्ड मुरुगन का अस्त्र है। बहुत ही भव्य दरवाजे हैं। इस पर मंदिर की साफ सफाई चल रही है। टेम्पल के बाहर ये मिलियन ईयर ओल्ड्स लाइमस्टोन केव्स हैं। श्रीवल्ली देवी नई मुरुगन। ये टेम्पल मेन टेम्पल के पीछे और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पड़ता है। और यहाँ पर जो केव्स हैं ये ओपन केव्स हैं। तो नमस्ते करिए। बनाना लीफ। अभी हम लोग आकर के यहीं बैठे हैं और यहाँ का मेन्यू और बम्बू बिरयानी, बम्बू साउथ इंडियन ऑप्शंस हैं मोस्टली। यहाँ पर बम्बू बिरयानी है। कैबेज फाइन, बीन्स कम्प्लीमेंट्री पापड़। यहाँ आ गए हम लोग। खाना खाने के बाद इसे फोल्ड कर दिया जाता है। लंच वाज रियली वेरी गुड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर। आज मलेशिया में हम लोगों का दूसरा दिन है। हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं बाटू केव्स को एक्सप्लोर करने। और उसके बाद शाम को देखते हैं हम लोगों का प्लान है। मस्जिद भी जाएंगे, मस्जिद निगारा घूमने का और उसके साथ साथ तियान हाउ टेम्पल घूमने का। हम लोगों के फ्लैट से कुछ ऐसा नज़ारा बाहर की ओर दिखता है। कार। हाँ बता दीजिए आप भी, क्या बताना है? कार बताना है। कहाँ पर है कार? चले मैं दरवाजा खोलिए। हाँ बिल्लू हो, बाबू बाबू चलो दरवाजा खोलो। खोल दीजिए। मंदिर और वहाँ पे Yeah, hello. Good morning. Good morning. Yeah, Gupta. Yes, Yeah. from India. From India. Which part of India you're from? I am from Uttar Pradesh, Varanasi. Uttar Pradesh. Oh, Yes. okay. Tomorrow we are planning to visit Genting Highlands. Genting, okay, very nice. After very that nice. we will go to Ipoh. Ipoh, very nice. Ipoh. Yeah, Ipoh. Yeah, okay. Ipoh and for CNY Chinese New Year celebration, Yeah. we will go to Penang. Penang, very nice. But Penang will be very Penang. crowded. Very crowded during Yeah, CNY. because- yes. Okay. Be very crowded. Okay, Ipoh is a bit Ipoh. relaxed town. Relaxed town. Not hectic. No? Okay. Yeah. Actually, when I missed Thaipusam, then I decided at least I must come here during the any kind of festival. Yeah. And Thaipusam is biggest festival. Yeah. Biggest festival. Thaipusam. Then we have Diwali. Diwali. Okay. Diwali is celebrated throughout the world, same. Yeah. But here is the biggest festival In Kuala Lumpur. Malaysia. Yeah. In Penang, I heard that they celebrate CNY very Because Penang is majority Chinese. majority Chinese. Yeah. Hokkien Chinese. Hokkien Chinese, yeah. And more than- Chinese is controlling the whole Malaysian economy. Yeah. Only 30% population. Is controlling the whole Malaysia. 20% Indians. 20% Indian. 51% is the locals. Malay. Original. Malay, yeah. 30% they are controlling the whole business here. So for how long you are here in Malaysia? I born here. You born? Yeah, I'm the third generation Indians. Yeah. Third generation. During the British, Commonwealth. Okay. Yeah, Commonwealth time. Okay. They brought the Indians from India to work in the estates. Yes. ग्रैब हम लोगों ने बुक किया और सुनील सर मिले हैं कि हम लोग को लेके जा रहे हैं बाटू केव्स। काफ़ी ढेर सारी बातें हुई इनके साथ और इन्होंने बताया कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह हैं, कौन कौन सी मले कुजीन्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से गाइड किया इन्होंने। तो हिंदी भी जानते हैं आप?
No, I don't know Hindi. And he has some origins in Kerala, from Kerala. Yeah. And right now he is born here. And Phil, what do you tell about this city? KL is Very, you should come here. It's a multiracial country. yeah, You can see all the religion here, yeah. and you have all the facilities. All the facilities. Wonderful facilities. And very organized city. Yeah, very Very organized. systematic city. You have everything here. Yes. You can see it's important is the multiracial community. कहना है कि यहाँ की खासियत है यहाँ पर चाइनीज, मलय, हिंदी सारी कम्युनिटीज रहती हैं और बड़ी हारमोनियस तरीके से एक साथ मिलजुल करके रहते हैं एक साथ. All- Okay, this bag. Bags and all that. They They tend can to grab? grab because they They think attempt to grab. they think it's food. Oh. There is any place where we can deposit it? No. No, You have to be very careful. Okay. So, 200 meters, exit left. अभी बताया भाई साहब ने कि यहाँ इस केव टेम्पल में ढेर सारे मंकीज हैं एंड वेरी एग्रेसिव मंकीज हैं. वो स्नैच करते हैं ये सोच करके कि इसे बैग के अंदर खाने के लिए होगा या फिर जो है कि इसको छीनने के बाद उन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा. you उन्होंने can कहा see, है now you have to can be see careful. Lord Muruga, the largest statue in the world. Okay. Have you seen? Yeah, we have seen in photos. Oh only. yeah. So he's been there. This is the entrance gate of Batu Cave Temple of Lord Murugan. काफी भव्य एंट्रेंस गेट बना रखा है. भगवान गणेश हैं, लॉर्ड गणेशा. चलते हैं मंदिर अंदर से एक्सप्लोर करते हैं. And बाटू केव्स के अंदर हम लोग चलते हैं और थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं. बात 1890 की है. एक तमिल ट्रेडर थे थम्बू स्वामी, वो यहाँ पर आते हैं और उन्होंने ही पहली बार लॉर्ड मुरुगन की स्टैचू यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया था मूर्ति का. और तब से लेकर आज तक इंडिया के बाहर विदेश में एक बहुत ही पवित्र हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में जानी जाती है. बाटू केव टेम्पल के अलावा इसे सुब्रमण्यर स्वामी देवस्थान के नाम से भी जानते हैं. हर साल यहाँ जनवरी फरवरी के महीने में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है या थाईपुसम कहा जाता है. तो थाईपुसम फेस्टिवल यहाँ पर हर साल मनाया जाता है. इस साल भी 26 जनवरी को ये फेस्टिवल यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया. और ये जो लॉर्ड मुरुगन की 140 फीट हाइट की एक स्टैचू सामने दिख रही है, ये जनवरी 2006 में यहाँ बन करके तैयार हुई थी. लॉर्ड मुरुगन भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं. श्रीमान बिल्लू के फेवरेट गॉड लॉर्ड गणेशा के भाई हैं. और आप लोगों में से कई लोग इन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जानते होंगे. तो आई थिंक आई एम ऑन रॉन्ग साइड. इधर से चलते हैं. कई नाम हैं इनके. सुब्रमण्यर देव सेनापति, गॉड ऑफ विक्ट्री एंड वॉर, कमांडर ऑफ द गॉड्स, गॉड ऑफ तमिल, और भी कई नामों से इन्हें लोग जानते हैं. आप लोगों को भी कुछ नाम पता होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए. लॉर्ड मुरुगन की स्टैचू के ठीक पीछे ढेर सारी लाइमस्टोन केव्स हैं, चूना पत्थर की गुफाएं हैं. टेम्पल केव यहाँ की सबसे मेन केव है. इसके अलावा भी यहाँ पर कई केव्स हैं. आर्ट गैलरी केव, म्यूजियम केव, रामायणा केव. वन बाय वन वी विल एक्सप्लोर ऑल द केव्स. तो बहुत ही क्राउडेड है. हम लोग आए हैं, 11 बज गया हम लोगों के यहाँ आने में. अभी एक बार 360 डिग्री व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है यहाँ इस मंदिर का प्रांगण. ढेर सारे मुराल्स हैं इस बिल्डिंग की वॉल्स पर. और ठीक सामने जो 272 स्टेप्स हैं जिनको चढ़ करके हम लोगों को मंदिर जाना है, वहाँ ठीक नीचे ही ये लॉर्ड मुरुगन की 140 फीट हाइट की ये स्टैचू है, गोल्डन स्टैचू. दोनों तरफ ढेर सारे टेम्पल हैं. वी विल एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस वन बाय वन. यहाँ पर ढेर सारे कबूतर भी हैं. फीडिंग
to these pigeons here. इस रास्ते से हम लोग अंदर आए और यहाँ भगवान गणेश जी का एक मंदिर है। बहुत ही कलरफुल ये टेंपल है, कोई वॉल्स नहीं है और यहाँ हर जगह पर भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ ऐसे बिठाई गई हैं। ये ब्लू कलर की है, ये ग्रीन कलर की मूर्ति है और यहाँ पर पिंक कलर की मूर्ति है। ढेर सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं, ढेर सारे मंदिर। इससे ज़्यादा कलरफुल टेंपल मैंने आज तक नहीं देखा है। जितने भी पिलर्स हैं सब सारे अलग अलग कलर्स के हैं। रेड कलर का है, रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन है, ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन है इस पिलर का। इसके अलावा बैगनी कलर के पिलर्स हैं, ग्रीन कलर के पिलर्स हैं। तो यहाँ पर एक काउंटर है, आई थिंक दिया वगैरह लेने के लिए। और ये है गणेश जी भगवान का टेंपल। अभी आरती भी चल रही है टेंपल में। पंडित जी है ना? मीनाक्षी अम्मान टेंपल है और मीनाक्षी देवी टेंपल, पार्वती देवी। ओके, एंड इज देयर एनी लॉर्ड शिवा टेंपल आल्सो? ओके, अपस्टेयर्स लॉर्ड शिवा टेंपल। ओके, लॉर्ड शिवा, पार्वती देवी, गणेश जी एंड हियर आउटस्कर्ट्स इज मुरुगन टेंपल। ओके, एंड अपोजिट इज दुर्गा देवी टेंपल। ओके, फाइन। पुजारी जी बैठे हुए हैं, से पूछा मैंने इस मंदिर के बारे में, तो उन्होंने बताया यहाँ पर एक ये गणेश जी का टेंपल है और लेफ्ट हैंड साइड में पार्वती देवी का टेंपल है। वहाँ स्टेयर से ऊपर हम लोग चलेंगे, वहाँ पर लॉर्ड शिवा का टेंपल है। जितने भी पिलर्स हैं सब पर कुछ न कुछ कलरफुल नक्काशी की गई है। हाथी बनाए गए हैं, गणेश जी बनाए गए हैं एंड बहुत ही खूबसूरत 3 डायमेंशनल एक हाथी का सर है, सूंड। बड़ा सा नंदी गाय यहाँ पर बैठा हुआ है और इसके ठीक सामने अभी हम लोग चलेंगे भगवान शिव का टेंपल है। यहाँ भी नंदी जी हैं। यस यस यस, पर ये पुजारी जी मिले हमें, पंडित जी मिले। My name is Mitran Swami मित्र साहब, एंड यू आर फ्रॉम from South India. फ्रॉम विच स्टेट? Like I am from near Tanjore. नियर तंजौर। ओके, सो भगवान शिव की मूर्ति है अंदर और यहाँ पर है प्रोटेक्टर ऑफ गॉड एंड His name called Vijayan and Jayan. विजयन एंड जयन। ओके, और नीचे भी जो गणेश जी का टेंपल था, लॉर्ड गणेशास टेंपल, एंड देयर आर 2 The same. सेम If you go for Meenakshi temple downstairs. मीनाक्षी टेंपल, Vijaya and Jaya. विजय एंड जया। ओके, फाइन। अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे मेन टेंपल की तरफ, यानी कि लॉर्ड मुरुगन का जो टेंपल है, 272 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहाँ चलते हैं। ये जो लॉर्ड मुरुगन की 140 फीट ऊंची स्टैचू सामने दिख रही है, ये जनवरी 2006 में बनकर तैयार हुई थी। आप में से कई लोग इन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जानते होंगे। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, जो लॉर्ड मुरुगन का टेंपल है वहाँ चलते हैं। ये उसका एंट्रेंस गेट है और ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके
हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा इन खतरनाक बंदरों से बचते हुए। काफ़ी कलरफुल और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सुंदर प्रवेश द्वार है इस मंदिर का। ऊपर ढेर सारी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की। हम लोग बीच की सीढ़ियों से चलेंगे ताकि इन बंदरों के अटैक से बचा जा सके। ये बंदर झपट्टा लगाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। 272 में से 50-60 सीढ़ियाँ अभी बाकी हैं और ये एक और एंट्रेंस गेट है जहाँ पर स्टेयर्स ख़त्म होती हैं। इसके ठीक ऊपर ये लाइमस्टोन केव्स हैं, चूना पत्थर की गुफाएं। यहाँ पर बंदरों की पूरी फौज है, ढेर सारे बंदर हैं। कुछ भी खाने पीने का अगर आप लेकर के आते हैं तो 100% बचेगी। हाँ, 272 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग पहुँचते हैं यहाँ इन केव्स के ठीक नीचे। एक ये प्लेटफॉर्म है, हॉल है, यहाँ पहुँचते हैं और राइट हैंड साइड में है श्री इदुम्बान टेम्पल। एंड यहाँ से स्ट्रेट हम लोग चलेंगे केव टेम्पल के अंदर। पानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी आप यहाँ कुछ शॉप्स हैं ले सकते हैं। ये शेड्स लगाए गए हैं ताकि ऊपर से अगर कुछ गिरे तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को चोट न लगे। ये है लॉर्ड मुरुगन का मेन टेम्पल के ढेर सारे नाम मैंने बताए थे। यहाँ एक और नाम मुझे पता चला है, श्री वेल्युथार टेम्पल, यानी श्री वेल्युथार। और मोर इनकी सवारी है। यहाँ मंदिर के बाहर ढेर सारे मोर बनाए गए हैं और ये इनका लॉर्ड मुरुगन का अस्त्र है। यहीं पर हम लोगों को जूता चप्पल उतार देना है, फिर यहाँ से अंदर चलते हैं। मेन टेम्पल का एंट्रेंस गेट है, 30 फीट हाइट की 2 लकड़ी के बहुत ही भव्य दरवाजे हैं। इस पर कुछ नक्काशी भी की गई है। ये इसका एंट्रेंस गेट। और अगर पूजा अर्चना में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नॉमिनल धनराशि मेंशन की गई है। महाअभिषेकम करने के लिए 101 मलेशियन रिंगिट, कोकोनट अर्चना के लिए 5 रिंगिट, फ्रूट अर्चना के लिए 3 रिंगिट और प्रसाद भी ले सकते हैं 101 रिंगिट में। तो अपने स्वेच्छा भाव से यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। एंड मंदिर की साफ सफाई चल रही है। ब्लैक मार्बल की सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ करके और भगवान मुरुगन की जो ओरिजिनल मूर्ति है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। सिल्वर कलर की ये मूर्ति है, ये उसी से पूजा कर रहे हैं अभी।
टेम्पल के बाहर ये मिलियन ईयर ओल्ड्स लाइमस्टोन केव्स हैं एंड ये हॉलो केव्स ओवल शेप में हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग इस ओवल शेप केव्स के ठीक बीचों बीच खड़े हैं। कई जगह पर इसमें छेद है जहाँ से जो है कि सनरेज अंदर आती हैं और उजाला रहता है। इसके अलावा लाइट्स भी लगाई गई हैं, फ्लड लाइट्स। और यहाँ से अभी हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखते हैं कौन सा टेम्पल है। श्रीवल्ली देवी नई मुरुगन। ये मेन टेम्पल ऑफ लॉर्ड मुरुगन। यहाँ से कुछ ऐसी दिखती हैं ये गुफाएं। क्या दिखाने ले आए हैं आप हम लोगों को? चलिए हम लोगों को ज़रा बता दीजिए, दर्शकों को कहाँ लेके आए हैं आप? इस टेंपल के कपाट अभी बंद हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग होगी। तो यहाँ से ये बाटू केव्स कुछ ऐसी नज़र आती हैं। ये टेंपल मेन टेंपल के पीछे और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पड़ता है और यहाँ पर जो केव्स हैं ये ओपन केव्स हैं, मतलब ऊपर से सनरेज लगातार आती रहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी उजाला है यहाँ पर। राइट साइड में भगवान नटराज की मूर्ति है और यहाँ पर गुफाओं के नीचे एक और मंदिर है, इसका भी गेट क्लोज है। स्टेयर्स बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर भगवान शिव हैं, नारद जी हैं। भगवान शिव की गोद में ये भगवान कार्तिकेय लॉर्ड मुरुगन बैठे हुए हैं। पहले भैया को नमस्ते करिए। अच्छा हेलो बोलिए। हाथ मिला लीजिए। अभी 1:30 बज रहे हैं और दोनों मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। मेन टेंपल के और अप स्टेयर्स पर एक और टेंपल है, दोनों मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ आने का प्लान करिए, अदरवाइज़ दर्शन नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर हम लोग बाटू केव्स हम लोग घूम चुके हैं, मंदिर में दर्शन हम लोगों ने कर लिया है। बाटू केव्स टेंपल से बाहर आकर के हम लोगों ने मेन एंट्रेंस से लेफ्ट टर्न लिया और लगभग 100 मीटर की दूरी पर हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिला है, बनाना लीफ। अभी हम लोग आकर के यहीं बैठे हैं और आइए देखते हैं इसका मेन्यू। यहाँ ठीक एंट्रेंस पर ही 2 बड़े बड़े हाथी इन्होंने बना रखे हैं एंड हियर इज द मेन्यू। हम लोग यहाँ ऑलरेडी बैठ चुके हैं, मेन्यू देखते हैं कि यहाँ क्या खाने के लिए है। ये है यहाँ का मेन्यू और बम्बू बिरयानी, बम्बू नासी लेमाक, एग और चिकन, डोसा, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या खाना है हम लोगों को। बिरयानी, ओके, white rice with vegetable meals. Here is rice plus variety veg of 3 types. 3 types. Which veg is? Veggies today we will serve with beans Beans. and Okay, same. same. Okay.
Masala dosa. Dosa will tosai. not available because this one is breakfast. Okay, this one is breakfast. Masala tosai not available. 7 to 11 only. 7 to 11 only. Okay. Then one bamboo with nasi lemak. Nasi lemak means rice. Rice. Egg rice. Yeah, with Okay, rice. fine. It is cooked in bamboo. 15 bamboo, yes. Okay. Yes, And served on banana leaf. served on banana. Fine. Already it will be 50% cooked in kitchen and 50%. काफ़ी बड़ा मेन्यू है इनका एंड इट इज़ नॉट फोल्डेबल। एक कार्डबोर्ड पर प्रिंट करा करके इन्होंने रखा है और वैरायटी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, साउथ इंडियन ऑप्शंस हैं मोस्टली। यहाँ पर बम्बू बिरयानी है। बम्बू बिरयानी के बारे में भाई साहब ने बताया कि ये पार्सली जो है कि प्रेशर कुकर में कुक करते हैं, बाकी का राइस ये बम्बू में कुक करते हैं। बम्बू चिकन बिरयानी, बम्बू मटन बिरयानी। तो हम लोगों ने मंगाया है बम्बू एग बिरयानी। Served it here. Egg nasi lemak there. Yeah, nasi lemak there. Okay, just tell us what is this? This one is Kacha? boto. Both. Okay. This one is cabbage. Cabbage. Fine. This one is beans. बीन्स। ओके, तो 3 वेजिटेबल्स का ऑप्शन था। इसमें एक बीन्स है, कैबेज है। इसका नाम भाई साहब क्या बता रहे थे आई डोंट नो, बट इसमें मुझे प्याज दिख रहा है, कुछ चिली दिख रहा है, मसाला दिख रहा है। मोस्टली इंडियन कम्युनिटीज़ के लोग बैठ करके यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री पापड़, यहाँ आ गई हम लोगों की दाल। दिस इज सांभर, रसम। ओके, फाइन। एंड हियर इज आवर नासी लेमाक। इसके साथ जो है एक चटनी दिया है इन्होंने खाने के लिए, प्लेन वाटर। रसम, चावल। कैसा लगा आपको नासी लेमाक? करके ये सारे आइटम्स खाए जाएंगे, टेस्ट करके आप लोगों को भी बताते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये रसम है, इसको खाया जाएगा। और ये सांभर है, इसको चावल में मिक्स करके एंड बताते हैं अभी कैसा टेस्ट है। बढ़िया है, इंडियन सांभर जैसा ही सांभर है। राइस थोड़ा सा मोटा है। अभी पेट पूजा हम लोगों ने कर ली है और खाना वाना खा लिया है। ये ट्रेडिशन, खाना खाने के बाद इसे फोल्ड कर दिया जाता है सो दैट यहाँ के वेटर हैं वो समझ जाएं कि हम लोगों ने खाना फिनिश कर लिया है एंड दे विल टेक इट अवे। हाउ मच? यस, 34.30 ये हम लोगों का बिल आया है। बम्बू, नासी लेमाक, राइस वेज एंड सिग्नेचर चिकन एंड वाह फाइन। इसके साथ 2 तरह के टैक्स हैं, 5% सर्विस चार्ज एंड 8% SST। लंच वॉज रियली वेरी गुड। Thank you. गोलगप्पे के स्टॉल पे आ गया हूँ मैं और यहाँ पर गोलगप्पा पैक हो रहा है। व्हाट डू यू स्टफ इन दिस गोलगप्पा? Chicken pani puri. ओके, दिस इज चिकन पानी पूरी। ओके, एंड चिकन एंड नमकीन, Chicken, namkeen, onion, ओनियन, करी लीफ। curry leaf, ओके, एंड दिस इज mixture, मिक्सचर। ओके, नमकीन मिक्सचर। एंड दिस टू pudina chutney, पुदीना चटनी, पुदीना पानी, पुदीना वाटर, pudina pani, स्वीट। sweet. ओके,
You're from Malaysia? From here? You love pani puri? Yes. Okay.